Assalamu alaikum, my dear students. And once again, for the last session, session number 45, we are together. I'm here with you one more time to share what I have learned over the past 28 years in Pakistan and across the globe, in academia, in corporate sector, in service sector, and in IT sector. How to blend different knowledge disciplines together, that you have a total quality approach at the personal level, at the professional level, and also at the organizational level. Last session में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से मैनेजर्स, आप या आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, how they can make you and the people around you empowered. And then we learn that this might be an idea out of space. लेकिन इतना भी ये कोहकाफ का आइडिया नहीं है. मेरा ख्याल ये है, मेरी फीलिंग है, मैं ये महसूस कर रहा हूं. Time has come. People are talking about quality of life, and believe me, people are talking about quality of work, and people are talking about quality of deliveries. हमने इस कोर्स में quality of work और quality of deliveries, products, services, systems, ideas को तो अच्छी तरह से देखा. उसके मॉडल्स भी, थ्योरीज भी, फिलॉसफीज भी लर्न की, फिर कुछ टूल्स भी लर्न किए. फिर आपकी मुलाकात भी हमने कुछ मैनेजर्स से करवाई, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हमने विजिट की. पाकिस्तान इज रिच, फुल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्लेवर्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ अरोमास, ऑल सॉर्ट्स ऑफ साइजेस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टाइल्स. And that is the time of diversity. आपको भी लर्न करना चाहिए कि किस तरह से डाइवर्सिफाइड आइडियाज को लेकर प्रोसेस को इंप्रूव करें. और उसी इंप्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे थे क्वालिटी ऑफ लाइफ की. एम्पावर्ड पर्सन, एम्पावर्ड वर्क एनवायरमेंट, एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. बहरहाल आज के इस लास्ट सेशन में मैं सिर्फ एक वो आइडिया जो लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया, कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप. हम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे, रिलेशनशिप. और फिर रिलेशनशिप तो देखिए, वी टॉक ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप एट द मिनिमम, बट वी ऑलवेज एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप. Remember, we talked about mutually balanced relationship, partnership. और इस रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि we are not asking you to squeeze the pie to make it a smaller one. No. We are also not asking that you only share from exclusively your own pie. वैसे तो देखिए वो सैक्रिफाइस होगा, और रिलेशनशिप के अंदर सैक्रिफाइस भी शामिल होती है. समथिंग विच यू गिव आउट, विच इज योर्स, योर राइट. लेकिन चलिए, हम तो प्रोफेशनल बनकर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में गुफ्तगू कर रहे हैं. म्यूचुअली बेनिफिशियल कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप का मकसद ये है कि लेट अस मेक द पाई बिगर. Let us commit ourselves to deliver a quality pie. Let us come up with a pie where we get a premium price. So once you get it, your customers are delighted. You get a better chunk, larger chunk. That is what the concept behind quality of work, quality of delivery, and quality of life. Quality of life for people,
inside the organization, outside the organization. Suppliers, vendors, subcontractors, customers, staff. How about investors, shareholders? How about regulators? All sorts of people. इस पर्सपेक्टिव में आप स्टाफ को एम्पावर भी कीजिए, दोज हु आर केपेबल. केपेबल नहीं है तो उनको केपेबल बनाइए. किसकी जिम्मेदारी है? ऑर्गेनाइजेशंस की. तो मैं शुरू में कुछ कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप के हवाले से उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा. कंप्लीट तो शायद ना हो, कुछ और कॉन्सेप्ट आपको दूंगा. I mean, there are courses exclusively on CRM and CSR. And then you bring in the supply chain management. It's all part of the value chain to make the customer, the end user, the buyer happy. फिर मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगा बेंचमार्किंग को. Would you like to compare yourself? Would you like to improve yourself on your own? Would you like to standardize yourself with someone who might be doing a better job? Benchmarking of product design, benchmarking of process design, benchmark of services, benchmark of trainings, benchmark of anything. That's an idea in the perspective of improvement. और फिर उसके बाद, my dear students, I would like to share with you a topic, an area which is emerging. Some people call it knowledge management. Some professors call it learning organization. Some people call it adaptive and generative organizations. Some people speak about creativity and innovation. And marketing people would like to talk about business intelligence. And the IT people would like to develop systems who would help the people, and once again, customers, the buyers, the staff people, the managers, to become intelligent. So that products, goods, deliveries, services, systems, ideas, even processes should be more intelligent. तो आइए फिर ये जहन में रखते हुए कि हमने टूल्स एंड टेक्निक्स और फिलॉसफीज और थ्योरीज को भी लर्न किया. एंड आई एम श्योर बाय नाउ you have your own understanding of what quality could be. Who could be your customer? What system would you like to bring in? How would you like to improve? Let's not forget the management by facts. But then, before you go away from this course, let us learn what a learning organization could be. And are there some in Pakistan? Yes, there are some. You cannot become a world-class company unless you have a commitment to become a learning organization. और हमने आपकी मुलाकात भी करवाई, विजिट भी करवाई एक ऐसी कंपनी से, पाकिस्तानी कंपनी से, जिनको आईटी में वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशन, वर्ल्ड क्लास अवार्ड मिला. और फिर वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मैनेजर जिनसे आपकी मुलाकात हुई, दैट कंपनी इज ऑल्सो वन ऑफ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. उस कॉन्सेप्ट को भी सॉफ्टली आज हम लर्न करेंगे. तो रिमेंबर, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी इज द हार्ड पार्ट ऑफ क्वालिटी. Software and hardware has to go together. You got a beautiful hardware, expensive. No software, no good. You got a very expensive software, very dedicated software. No hardware to run on. So my dear students, someone from IT, someone from business, someone from management, someone from sociology, you got to use your right brain and the left brain, both together.
That is the total quality personality, total quality manager who would certainly be looking on the cultural and the people issues, the empowerment and the relationship issues. And we are also looking the management of quality. What is the data speaking? How does the chart look like? Where do I have to tune up? The process, the people, the product, so that I can earn better profit. तो मुझे जरा वक्त दीजिए थोड़ा सा कि मैं पहले कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप के कुछ कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर लूं, फिर थोड़ी देर के लिए बेंचमार्किंग को मैं टच करूंगा, इसलिए कि इंप्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव में हमने काफी डिस्कशन की पहले 3 सिग्मा और 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट, बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट, फिर वो सारे टूल्स, और अगर उसके साथ आप और मिलाना चाहें तो काइजन का कॉन्सेप्ट. अब आप कहेंगे काइजन मैंने इससे पहले भी एक दफा मेंशन किया था, इट्स अ जापानीज वर्ड, 2 वर्ड्स रादर. हाउ वुड यू लाइक टू इंप्रूव कंटिन्यूअसली. फिर वो कुछ 7 मूडास की भी बात करते हैं. नोट कीजिए जरा, लर्न कीजिए. देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम जापानीज. Of course, we can't cover everything in this course. Whatever is left, remember I spoke about Mudas. M-U-D-A-S. 7 Mudas they speak about. Think about it. Learn what are those Mudas. How can you remove so you can improve the process. आज हम लास्ट सेशन है, आपने वक्त से पहले क्लास से उठना नहीं है, इसलिए कि towards the end of session I have some surprise to give you. I have some surprise to show you. इसलिए कि मेरा तो प्रेजेंटेशन और शोइंग ही एक गिविंग आउट है. And I'll share with you my heart and my mind that what is there else to learn so that you become a quality personality. So are you with me? इजाजत है मुझे. मैं कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप के कुछ कॉन्सेप्ट और बेंचमार्किंग को प्रेजेंट करने के बाद आपसे शेयर करूंगा टीक्यूएम का एक ओवरऑल व्यू कि क्या हमने वो सब एरियाज कवर किए, और एक पिक्चर आपके सामने आ जाए, और फिर मैं आपके साथ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉलेज मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में कुछ अर्ज करना चाहूंगा. सो वी आर फोकसिंग ऑन CSR. दिस इज द चेन वी टॉक्ड अबाउट. एवरीवेयर यू हैव कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, एंड how good is the strength between the chain members ultimately decide what is the level of value which is being delivered by you and your company. Of course we know कि customers जो हैं वो TQM की एक्टिविटी के अंदर मेन फोकस है, inside the organization, outside the organization. Remember हमने तो 3-4 कस्टमर्स की बात की थी, वो याद है ना कॉन्सेप्ट. कुछ उसके बारे में भी अर्ज करूंगा अभी थोड़ी देर में. लेकिन TQM की एक्टिविटी CSR के पर्सपेक्टिव में ये आपसे एक्सपेक्ट करती है कि यू सेटिस्फाई देम, दैट बिकॉज दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ TQM. एक्सटर्नल कस्टमर्स, बायर्स, कंज्यूमर्स. Customers are recognized as the guarantee that the organization will stay, prosper, survive and will achieve its purpose. और हमने यही कहा था कि टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशंस वही हैं जो पर्पसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अपने विजन और पर्पस को अचीव करती हैं, उसको रिन्यू करती हैं, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करती हैं, और हायर स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स को मीट भी करती हैं, अचीव भी करती हैं, एक्सेल भी करती हैं. सप्लायर के लिए ये कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है? दे आर क्रिटिकल. वेंडर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, कंपनी के सप्लायर, दे आर क्रिटिकल टू अस बिकॉज वी एज द कंपनी आर ऑल्सो कस्टमर. हम उनके कस्टमर है ना, हमें उनसे रॉ मटेरियल लेना है, हमें उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो स्टॉक जो हम उनसे ले रहे हैं, अगर वो हमारे साथ कमिटेड नहीं है तो थिंग्स वुड बी डिफिकल्ट दैट वी वुड सेटिस्फाई आवर कस्टमर्स. फाइनल प्रोडक्ट कैन नॉट बी बेटर. इसको जरा गौर से सुनिएगा कि फाइनल आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट कैन नॉट बी बेटर देन द पार्ट्स विच आर बीइंग यूज्ड टू कंप्राइज इट.
और यहां मुझे ये कहने का मौका दीजिए कि हमने एक चॉइस आपको ये दिया कि आउटपुट की क्वालिटी को एसक्यूसी के पर्सपेक्टिव में मेजर कीजिए, प्रोडक्ट फोकस। फिर हमने कहा कि नहीं, प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ प्रोसेस, तो एसपीसी को ले आए हम। इस कॉन्सेप्ट को भी लर्न कीजिए कि इफ यू कैन कंट्रोल क्वालिटी एट द इनपुट लेवल, you will not worry about the process and the output. Incoming material, यानी वो पार्ट्स, वो क्वालिटी का है। आपने जो आरएस डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसमें जो इंफॉर्मेशन आपको मिली एज एन इनपुट, वो क्वालिटी की थी, रिफाइंड थी। तो डेफिनेटली जो सिस्टम, जो आउटपुट, जो प्रोडक्ट, जो सर्विस आप डिलीवर करेंगे, उसके बारे में कहा जा सकता है कि वो क्वालिटी की होगी और उस कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी। सप्लायर्स शेप द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। सोचिए जरा इसके ऊपर कि जिनसे आपका वास्ता है, कंपनी का, एक तो वो आपके कस्टमर्स हैं ना, आपको भी बहुत सारी चीजें लेनी, आपको ब्रोशर प्रिंट करवाने, आपको अपनी एड कैंपेन डेवलप करवानी है, आपको इस प्रोडक्ट के लिए कुछ कंपोनेंट्स, कुछ रॉ मटेरियल, बहुत सारी चीजें आपको परचेज करनी है। इफ दे डोंट डिलीवर यू ऑन टाइम, इफ दे डोंट डिलीवर यू ऑफ द काइंड ऑफ क्वालिटी यू आर लुकिंग फॉर, इफ दे डोंट कमिट वट एवर योर स्टैंडर्ड्स आर, इसलिए तो हम आईएसओ में भी इसको शामिल करते हैं। और जो दूसरे हायर क्वालिटी के अवार्ड्स हैं, वो तो डेफिनेटली कस्टमर एंड सप्लायर बिकम्स वन चेन। द लास्ट पार्ट इन CSR chain for the supplier is that the supplier influence the cost as well as the quality of the product. किसकी? उस प्रोडक्ट की जो आप बना रहे हैं। इसलिए कि सप्लायर अगर डिलीवरी डिले करेगा, आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग पे उसका असर क्या पड़ेगा। इसीलिए आप ये देखिए कि जो आप ERP के पर्सपेक्टिव, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, आप प्रोडक्शन प्लानिंग के पर्सपेक्टिव, आप इन्वेंट्री कंट्रोल और प्लानिंग के पर्सपेक्टिव में, you go back and you try to bring quality at the planning level, that you bring the supplier in the net, you bring the vendors in the net, you bring the customer information and quality information in the net, and you make sure that all what you need is of quality and it will not create any defects, so that you don't have to take any corrective action. Because more corrective action you take, more defects there are, more scrap there is, more downtime there is, longer cycle time there is, higher will be the cost. That's what we are trying to learn here. That suppliers will try to influence, to bring the cost down. So either you can pass this benefit and advantage to your customers, or you can increase your profit. Choice is yours. उसका मतलब ये होगा कि CSR के पर्सपेक्टिव में, इस रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में, we need to understand the strategic importance of this CSR. CRM मार्केटिंग में हम बात करते हैं सिस्टम की भी और रिलेशनिंग की भी। फिर रिलेशनशिप टेक्नोलॉजीज हैं, IT के स्टूडेंट डेवलप भी करते हैं, जानते भी होंगे, मार्केटिंग वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये आपके लिए जरूरी है कि आप इसको बिल्ड करें। एंड देन यू डेवलप ए विन विन रिलेशनशिप बिटवीन योरसेल्फ, योर कंपनी एंड योर सप्लायर। देखिए, बिजनेस तो उसने भी करनी है, आपने भी करनी है। सो हाउ कैन वी लिव टुगेदर दैट दिस पाई विल ग्रो एंड आवर रिलेशनशिप विल ग्रो। और जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप ग्रो करती है, वो आपका भी ख्याल करता है, आप भी उसका ख्याल करते हैं। ट्रस्ट होता है, कमिटमेंट होती है, क्वालिटी होती है, क्वालिटी इन प्रोडक्ट, क्वालिटी इन प्रोसेस, क्वालिटी इन रिलेशनिंग। इट ओनली कम्स इफ यू हैव ए स्ट्रेटेजिक फोकस। नंबर 3, यू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट। सॉफ्ट पार्ट आ गया ना, सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ हैज टू गो टुगेदर। चौथा पॉइंट, ट्रस्ट इज डेवलप्ड नॉट इन वन डे। मुझे भी आपके साथ रेपो बनाने में कुछ वक्त लगा, but once this rapport and relationship is developed, it stays for a long time. It is developed over time
थ्रू ए पैटर्न ऑफ सक्सेस। आप भी उसी दुकान पर, उसी खोखे पर, उसी होटल पर, उसी स्टोर पर जाते हैं जिससे आपने लास्ट टाइम सामान खरीदा था, खाना खाया था, सर्विस ली थी, एंड यू वर सेटिस्फाइड। यू वुड लाइक टू रिपीट दैट एक्सपेरिमेंट, यू वुड लाइक टू रिपीट दैट एक्सपीरियंस। ये कस्टमर का राइट है। He or she would like to have an experience which is satisfying on his taste, which is satisfying on her personality, which is satisfying on his or her perception. पहले सोच सेटिस्फाई होगी, थिंकिंग, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, कंज्यूमर बिहेवियर का पूरा एक फुल फ्लेज एरिया मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में हम पढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ सक्सेस, and by all parties which are involved fully and faithfully. Nobody is cheating on quality so that everybody is happy in the chain. देखिए, अगर किसी के साथ आप फेथफुल नहीं हैं चेन के अंदर, एक दफा आप कंटेनर भेज देंगे, दोबारा तो ऑर्डर नहीं मिलेगा। एक दफा आप टेक्सटाइल सेक्टर में, एक दफा आप सोइंग करते हुए धागा बचा लेंगे, कुछ बटन बचा लेंगे, कुछ जिप्स बचा लेंगे, कुछ कपड़ा बचा लेंगे। आई एम सॉरी, कस्टमर्स विल कंप्लेन एंड यू विल रिसीव द कंप्लेन। बाज़ औक़ात तो फिर वारंटी क्लेम भी आते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग यू डिलीवर विच वाज प्रॉमिस्ड। अच्छा, फिर हम जब मेरे प्यारे मुल्क में, मैं जानता हूं आप भी जानते हैं, ऐसे सप्लायर्स, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हु डोंट डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस। आप मुझे बताइए, कंज्यूमर का एक्सपीरियंस बेटर होगा या नहीं? और फिर माय डियर स्टूडेंट्स, जिस दुकान पर, जिस खोखे पर, जिस प्रोफेसर के साथ, जिस इदारे में, जिस हॉस्पिटल में, जिस बस में, जिस कंपनी की बस में आपका एक्सपीरियंस बेटर हुआ, आपका एनकाउंटर इरिटेशन के साथ था, यू विल टॉक बैडली एंड यू विल टॉक नाइसली इफ इट वाज गुड। तो ये जो मुफ्त की प्रमोशन है, मुफ्त की एडवर्टाइजिंग है, अच्छे एक्सपीरियंस की भी एंड नॉट सो गुड एक्सपीरियंस की भी, प्रोफेसर के बारे में भी। प्रोफेसर के सामने शायद अपना, अब तो वक्त आ गया प्रोफेसर के सामने लोग कहते हैं व्हाट इज दिस फीडबैक। You give feedback anonymously and sometime with name. Student कहता है साहब मुझे ईमेल मिलती है with name. Students 21st century are grown up. They know their right. They speak about good and not so good. That's what we are talking here. That you join a company where you deliver what you promise. कि साहब ये हमने आपसे प्रॉमिस किया था, TQM की कोर्स की आउटलाइन के अंदर ये टॉपिक्स कवर होंगे। आर दे कवर्ड? एंड आई विल शो यू दैट स्लाइड। आर दे कवर्ड? हम तो ये कहते हैं टोटल क्वालिटी के पर्सपेक्टिव में गिव अ लिटिल मोर। जैसे मैंने कहा कि कुछ टुवर्ड्स द एंड आई विल शेयर विद यू समथिंग एक्स्ट्रा। वो जो बोनस का कॉन्सेप्ट है, वो जिसको कभी उर्दू में झूंगा कहा करते थे, वो क्या था? यू गिव आउट, यू डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस एंड देन यू गिव अ लिटिल मोर। ये जो मोर है ना, ये आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी बिजनेस के लिए। ये रिलेशनशिप है, ये कस्टमर को दोबारा लेकर आएगी। अब आप कैसे कंपनियों में 21st सेंचुरी के अंदर ब्रांड इमेज को डेवलप करने के लिए झूंगा डेवलप कर सकते हैं? किस आइडिया के तहत? थिंक अबाउट इट। देयर आर सो मेनी वेज यू कैन डू इट। कॉन्सेप्ट इज सेम, सो यू लर्न द कॉन्सेप्ट and then implement in services or in IT or wherever. यूजर फ्रेंडली का जो कॉन्सेप्ट है, कस्टमर फ्रेंडली का जो कॉन्सेप्ट है, वो इसी से रिलेटेड है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज अबाउट बेंचमार्किंग। और फिर बेंचमार्किंग के बारे में मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं, रिमेंबर यू कैन बेंचमार्क योर परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल, प्रोसेस, कस्टमर, learning, any performance. You can benchmark your product, you can benchmark your services.
इसमें कोई हर, ये तो एक इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है. यू वांट टू एक्सेल, फाइन. लेट मी शेयर द प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग विद यू, बिकॉज यू विल हियर दिस टर्म. इसलिए कि टोटल क्वालिटी का कोर्स पढ़ा और आपने बेंचमार्किंग का लफ्ज ना आए, अगरचे हम इंप्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते. ISO 9004 का जो स्टैंडर्ड है, रिमेंबर वी सेड इट्स अ गाइडलाइन, इट्स ए सेल्फ इंप्रूवमेंट, इट्स अ बेंचमार्क. ISO ने कहा कि ये 8 टोटल क्वालिटी के प्रिंसिपल्स हैं. अगर आप इन सबको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, देखिए ISO 9001 तो एक रिक्वायरमेंट्स का स्टैंडर्ड है, ये तो आपको मिनिमम में जो करना है. TQM इज नॉट मिनिमम, दैट इज समथिंग मोर. तो बेंचमार्किंग का प्रोसेस जो आप साथ में शेयर करना चाह रहा हूं वो ये कि नंबर 1, यू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल प्रोसेस. रिमेंबर हमने कहा था कोर प्रोसेस, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल प्रोसेस विच नीड्स टू बी इंप्रूव्ड. किसके साथ करेंगे? आप अपने कंपटीटर के साथ भी कर सकते हैं. अच्छा, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? देखिए मैंने अभी तो नाम लिया था बिजनेस इंटेलिजेंस का. पीपल फाइंड आउट हाउ योर कंपटीटर्स आर डूइंग. उसको कह लीजिए कंपटीटर इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस की ये एक एक्सट्रीम शक्ल होती है विच इज अनएथिकल. उसको क्या कहते हैं? एस्पियोनाज. हम उसकी बात नहीं कर रहे. हम तो ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी या प्राइमरी डेटा से what can we find out intelligently that how can we improve our critical process. अब हम चूंकि प्रोसेस की बेंचमार्किंग की बात कर रहे हैं, बट यू कैन डू इट फॉर प्रोडक्ट एज वेल, फॉर प्रोडक्ट डिजाइन. इसी की बेस पर फिर कंपनियां मर्ज करती हैं, इसी की बेस पर फिर कंपनियां एक दूसरे को एक्वायर करती हैं, बिकॉज दे वांट टू एक्सेल. नंबर 2, यू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेल इन दिस प्रोसेस. अच्छा, बाज़ औक़ात अगर कोई किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को आप नहीं देखना चाहते तो अपने घर के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को देख लीजिए जो आपसे बेहतर काम कर रहा हो. एंड इफ यू कैन डू इट विद इन हाउस, देन दैट डिपार्टमेंट वुड बी द वन विद whom you would like to benchmark. Number 3, बेहतर तो यह है कि कॉन्टैक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट यू लाइक टू विजिट. लेकिन अगर वो आपके कंपटीटर हैं तो वो शायद आपको इजाजत ना दें. तो फिर हम कहते हैं कि हैव ए बर्ड्स आई व्यू. हेलीकॉप्टर फ्लाइट लीजिए एक. इसलिए कि आपको अगर इंप्रूव करना है और ये आपकी जरूरत है तो फिर आपको किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट करना होगा, खुद या किसी के थ्रू. एंड देन यू एनालाइज द डेटा. वेयर आर यू, वेयर आर दे, एंड व्हाट इज द गैप. इस गैप को कैसे फिल करेंगे? टाइम वाइज, रिसोर्सेज वाइज, स्टाफ वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज. ठीक है ना? आपको इंप्रूव करना है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी है, प्रोसेस को इंप्रूव करना है, पीपल को इंप्रूव करना है. किस चीज को इंप्रूव करना है? यू फाइंड आउट व्हाट इज द गैप एंड देन यू ट्राई टू फिल द गैप एंड इंप्रूव द क्रिटिकल प्रोसेस. तो बेंचमार्किंग बेसिकली एक इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस है. और उस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस को हम क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि TQM के प्रिंसिपल्स में और फिलॉसफीज में और थ्योरीज में और कॉन्सेप्ट्स में और स्टैंडर्ड्स में दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. लेट्स टेक एन ओवरव्यू. हैव वी कवर्ड दिस ऑल? वी सेड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी? Have we done it? Did I deliver what I promised? Did we discuss what is the meaning of quality? Do you know now? Can you come up with your own meaning and definition? Then we discuss quality concepts and QCs, QAs, TQCs and TQM. We talked about quality standards. We discussed in detail one international standard, ISO 9001. Of course, then we looked at quality from the strategic perspective. Strategy, leadership, vision, mission, balanced scorecard, performance management, improvement perspective, strategic excellence, tactical excellence, operational excellence. How to bring this excellence? Quality tools, planning tools,
मैनेजमेंट टूल्स, QC टूल्स, PC टूल्स, और फिर हाउ टू मेक इट हैपन, हाउ टू डू इट, who will be my teacher, who will be my coach, who will be my leader, who will motivate me, who will inspire me, who will make the things moving. Soft part. We have to work together in teams. Did we learn how to work smoothly in teams? Remember I said, जो चाय की प्याली पे तूफान आ जाए वो उस तूफान से बेहतर है जो असेंबली फ्लोर पे आए और सब दुनिया देखे. इसको जरा गौर कीजिए इस बात पे. Let's talk one to one. Let's sort it out. Storming, part of the life, part of the game, part of the process. But let's get over with it. तूफान आए, गुजर जाए. Teams. And then empowerment. लास्ट लेक्चर में बात हुई और कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप की तो आज ही हमने इस कॉन्सेप्ट को कवर किया. तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ए टोटल बुके ऑफ TQM. अच्छा देखिए, बुके में क्या होता है? कोई सफेद, कोई नीला, कोई पीला, कोई सुर्ख, कोई सब्ज, मुख्तलिफ रंग के फूल, मुख्तलिफ साइज के फूल, मुख्तलिफ शेप के फूल. कुछ उसमें अच्छी स्मेल देते हैं, आपको पसंद है, चमेली फाइन, ट्यूलिप ओके, रोज फाइन. कुछ फूल बगैर अरोमा के भी होते हैं, लेकिन बुके का तो मतलब ही ये है, इट शुड बी ऑल टुगेदर. सो प्लीज कीप इन माइंड दैट यू हैव टू टेक ऑल दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम डेमिंग और फ्रॉम जुरैन, whichever way you like to take, depending upon the culture of your organization. जुरैन ने कहा था अगर कल्चर है कि टॉप मैनेजमेंट डॉलर की बात सुनती है, मिडिल मैनेजमेंट प्रोसेस की बात सुनती है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑपरेशन की बात करती है, यूज जुरैन्स फिलॉसफी. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज फोकस है, लर्निंग फोकस है, खुद भी लर्न करती है, अपने स्टाफ को भी लर्न करवाती है, अपने कस्टमर्स को भी लर्न करवाती है, अपने सप्लायर्स को भी लर्न करती है, एंड लर्निंग इज पार्ट ऑफ लाइफ, तो फिर डेमिंग की फिलॉसफी को लीजिए. तो फिलॉसफी तो देखिए, इट इज देयर, यू लाइक इट टेक इट, यू डोंट लाइक इट टेक अनदर फिलॉसफी, और मे बी यू कम अप समथिंग ऑफ योर ओन. ये वो सारे एरियाज हैं जो हमने TQM के पर्सपेक्टिव में कवर किए. अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बोनस के तौर पर, शायद इसके बाद आप वो एरिया लर्न करना चाहें अगर आपको अच्छा लगे मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में. द एरिया ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट एंड द एरिया ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स सी व्हाट इट इज, व्हाट डज इट मीन, और क्या लर्निंग ग्रोथ से रिलेटेड है? क्या लर्निंग से भी डॉलर आते हैं? क्या लर्निंग से भी मेरी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है? क्या लर्निंग से भी मैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता हूं? लेट्स सी इन द रिमेनिंग फ्यू मिनट्स बिफोर आई से गुड बाय फॉर दिस कोर्स, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम. कौन से ऑल? कम से कम ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स. The one who's working in the organization, workers. The one who is out there in the market, buyers. And let's not forget the one who invested for this company, investors. 3 customers हैं इस कंपनी के. देखिए, वो कमर्शियल मार्केट जिसमें बायर है आपकी प्रोडक्ट्स का, अगर आपको उसे सेटिस्फाई करना है, you have to develop those competencies inside the house, inside the organization. CMM level 5 पर पहुंचने के लिए आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टीम लीड्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, एवरीबॉडी इन हाउस मस्ट डेवलप कॉम्पिटेंसीज. मैंने कहा था ना, नॉन मैट्रिक वाले को मैट्रिक करवाइए, मैट्रिक वाले को इंटर करवाइए, इंटर वाले को बैचलर डिग्री करवा के दीजिए, बैचलर वाले को MBA करवाइए या कोई मास्टर इंजीनियरिंग करवाइए. कॉम्पिटेंसीज, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दीजिए
ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दीजिए, टेक्निकल ट्रेनिंग जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है वो भी। कॉम्पिटेंसी मार्केट, जब तक आपकी कॉम्पिटेंसी मार्केट अलाइन नहीं होगी, कैपेबल नहीं होगी कमर्शियल मार्केट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, यू कैन नॉट डिलीवर, यू आर नॉट कैपेबल, यू आर नॉट रिसोर्सफुल. I'm sorry, you cannot meet the demands and the needs and the wants of the buyer in the commercial market. You cannot survive for a long time. So investor has to invest. Invest in people, invest in process, invest in technology, invest in culture. Investor को वो invest करना होगा. They will drive the process. The process will deliver the product in the commercial market. Revenue will be generated. The sales will bring the profit. Return on the investment. And then when you take this company in the stock exchange, your market value will be increased. बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी बुक वैल्यूज बहुत थोड़ी होती है. देखिए ना, शेयर 10 रुपए का था, बिकने लगा 50 रुपए में, 100 रुपए में. क्यों? उस कंपनी के लोग जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, दे आर हाईली कॉम्पिटेंट, दे कैन मीट एवरी चैलेंज ऑफ द कमर्शियल मार्केट, दे आर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव पीपल. एंड वंस अगेन टेक अ लुक ऑन दैट मोबाइल फोन coming from a very small country in Europe, being sold all over the world. अब चेन डेवलप हो रही है. कैसे? मोबाइल फोन की कंपनी नेटवर्क्स वाली कंपनी के साथ चेन बना रही है. नेटवर्क वाली कंपनी फ्रंट एंड पे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ चेन बना रही है. फ्रंट एंड सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोवाइडर एंड द गैजेट प्रोवाइडर, तीनों मिल गए. 3 कंपनियां, तीनों स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्पेरस, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज. Why do they have to merge? Why do they have to become partner? Why do they have to share their pie? एक पाई का वो साइज नहीं है, अब वो पाई बड़ी हो गई. This is the trend that if you want to meet the challenges of the commercial market, which is in the 21st century more creative, more innovative, then you have to join hands with those companies, with those people, with those teams, with those suppliers who will make you innovative. इसका मतलब यह हुआ, इस दौर में जिंदा रहने के लिए, वैसे तो हर दौर में ही था, लेकिन I'll share with you in a minute why this 21st century full of technology, very fast, no more physical borders, deregulation, liberalization, foreign investments. There are many variables you cannot control, but one variable which you can control and become master at the individual level or at the company level is that you learn. Now, when you speak of learning, immediately we bring in the issue of creativity and innovation. The choice is that at the individual level, if you are learning and your company is not learning, then I'm sorry, your organization is not a learning organization. Learning organization means it creates an environment where people come up with ideas which can be implemented, which will be profitable when it hit the market. Let us see, let us hear, let us feel, what does it mean for you at the individual level for your career,
and what this skill set of being innovative and creative can bring profitability and productivity and higher performance in the organizations. What is the choice? Either you invent or innovate, create something new, or improve the processes and ideas, make it more user friendly, make it more customer friendly, so that people would realize you got a better design. If you don't innovate, then what is the choice? Well, you may evaporate. You won't even notice what has happened. So the choice is very limited. My dear students, wherever you are, in small villages, in large villages and kasbas and tehsil, or at the district level, Lahore, Quetta or Karachi or Peshawar. Either you are in Islamabad or you plan to go to London, New York or Sydney. Please learn how to be innovative, how to bring change in the process, how to do things better, how to suggest solutions to the problems, how you make better decisions, informed decisions, and you contribute in such a way that the people in the company would not let you go, because you are very important, very useful for the company. This means you have to learn. तो आप कहेंगे जी हम लर्न तो कर ही रहे हैं, ये कोर्स में बैठे हुए हैं ना. जी बिल्कुल, आपकी बात सही है. लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, यही कॉन्सेप्ट है जिसको इंग्लिश में आज हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग. कीप ऑन लर्निंग. Whatever your area of interest, whatever your taste of interest, whatever your style of interest, and then the time has come that the products and services are knowledgeful, informationful. Can you add some more information? And if you have that information, how can you show? How can you prove that you know it? And you know it for future. In other words, an organization which is continually expanding its capacity to create its future is a learning organization. It adapts to the environment and it survives. And it is also good in generative learning. Generative learning kya hai? Learning which enhances your capacity to create. That's what makes you innovative. Professor Peter Senge of MIT is the one who really presented it in a way that's a workable solution. An individual must continue to learn, so must organizations where they work. And according to him, it's a very well established way of doing things together now, is that these are the disciplines which you have to go through. Make people master of their own, empowered. हर एरिया, हर डिसिप्लिन इसमें कोशिश कीजिए कि किसी दूसरे कोर्स में लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉलेज मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में लर्न कीजिए जो किताब प्रोफेसर पीटर सेंजे ने लिखी, फिफ्थ डिसिप्लिन. दैट इज द सिस्टम्स थिंकिंग. बट बिफोर यू थिंक इन सिस्टम्स, लेट पीपल बी मास्टर ऑफ देयर ओन, एंड देन दे शुड डेवलप ए मॉडल, मेंटल मॉडल, दैट एवरीबडी वर्किंग टुगेदर एंड हैविंग अ शेयर्ड विजन. वैसे तो हर शख्स का अपना एक मेंटल मॉडल होता है. कैन वी हैव ए कॉमन मेंटल मॉडल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? हाउ कैन वी हैव अ विजन विच इज शेयर्ड बाय एवरीबॉडी? वी लर्न एंड लर्न एज अ टीम. देन वी कैन थिंक ऑफ अ सिस्टम विच इज अडेप्टिव एंड जनरेटिव. एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन विच यू कैन कॉल इज लर्निंग. एंड प्लीज कीप इन माइंड, माय डियर स्टूडेंट्स, learning is a sign of life. Learning is directly attached with growth. And growth is a sign of life. If you don't learn, life के against क्या है? Death. Stagnancy. Static. You depreciate. Your knowledge becomes obsolete. इसका मतलब ये हुआ कि learning और knowledge management ये दोनों आपस के मिलते जुलते डिसिप्लिन है. इसका क्या मतलब हुआ? Our culture we are proud of, but we are connected to the world. Technology,
And this technology is available everywhere. In the villages, with the plumbers, with electrician. और मेरे घर में तो जो सफाई करने वाला आता है उसके पास भी मोबाइल फोन है. It's a technology, it's a commodity anymore. How are you going to gain advantage out of this? It's a connected world. Connectivity. And let's not forget our culture. We should be proud of the culture. Pakistan, remember we said capacity to learn, competencies. Pakistani youth, Pakistani students, Pakistani managers. मैंने स्टेट्स में भी पढ़ाया है, ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ाया है, श्रीलंका में भी पढ़ाया, सिंगापुर और मलेशिया में भी पढ़ाया, मिडिल ईस्ट में भी पढ़ाया है. Pakistani youth, Pakistani students, Pakistani managers, no less than any country. So feel proud of the culture, feel proud of being connected, networked, and then develop and deliver a content to the community. And how can you share with the community? Because knowledge is power, but knowledge sharing is more powerful. Smart organization will have smart departments. And smart departments will have smart people. They will use not 5 senses, but all the senses and then respond. They will come up with smart practices and smart services. Their performance will be smart. मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि this can happen if you manage your knowledge. Professor Peter Drucker has said it, one of the 21st century management guru. The basic economic resource is no longer dollar. बैंक लिए फिरते हैं आपके पीछे, टेलीफोन करते हैं रोज, जी पैसा ले लीजिए. It is no longer natural resources, my dear students, not labor. It is knowledge. Think of it. You can process data in databases, make good information management through systems. But sorry, if you want to convert this information into knowledge, this is the people part. Let the people be empowered. Let the people share. Professor Nonaka, who was a graduate of Berkeley and has been working in Japan in a university, has developed a model he called knowledge creating model. SECI model, SECI. देखिए इसको कैसे नॉलेज क्रिएशन के अंदर ये मॉडल हेल्प करता है. He worked for 15 years for many companies in Japan. Knowledge is the property of people. How can I use this property and use it for the organization? It's my personal capital, but I want to, as a manager, I want people to bring their personal capital and use it for the sake of organization. Learn those skills of coaching and mentoring that people will give you their mind and heart. Money cannot bring idea. Idea is nothing more than a piece of knowledge. And when two people share their idea, they come up with a product, knowledgeful product. इसका मतलब ये हुआ कि knowledge is a personal capital. This should be deployed in the organization within a certain culture and environment so that decisions should be taken and actionful product and performance will be delivered in the market. And that's why we are saying those companies are good, which are giving you every 6 months a new design of their product, which is a knowledgeful product. So it's a human capacity and it is the potential and ability of your workforce to make an effective decision under different situations. My dear students, knowledge has 2 dimensions and you have to keep both in mind. Explicit is formal, systematic, precise, brochures, books, journals, documents. That's explicit knowledge. Tacit knowledge, on the other hand, is difficult to formalize. ये है हर शख्स की अपनी प्रॉपर्टी. It is difficult to express. इसकी precision भी लो होती है, लेकिन that is where the ideas and the skills are. That is what is required that people can give it to the organization. Compare कीजिएगा 20th century में formal education, yes, year of experience, क्या position है?
क्या रैंक है, नोटिस 21st सेंचुरी। टैलेंट चाहिए, स्किल सेट और एक्सपीरियंस चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, आपके एटीट्यूड और बिहेवियर की कीमत है। आप रिसोर्सफुल कितने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस कोर्स को वाइंड अप करते हुए मैं भी तो कुछ एज ए कस्टमर आपसे डिजायर कर सकता हूं। माई डिजायर इज दैट पाकिस्तानी ह्यूमन कैपिटल should be used for Pakistani organization so that these organizations should blink as a star in the global market and in the local market with world-class products, with world-class ideas, and my dear students, with world-class services. Can I do it? Are you willing to do it? That is a total quality desire. आपकी भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त तो मैंने ये डिजायर इस कोर्स के थ्रू आपके सामने फ्लोट करती है। I think we all can do it. And I expect that when you work in organization, manufacturing, service sector, hospitals, NGOs, public sector, IT organization, and you make them world class by delivering those products which will make the name of Pakistan higher and higher in the markets of the world. Believe me, we have the capacity and capability. And if not, let's learn and let's generate this capability and make yourself resourcefulness and make your habit of learning. And believe me, you will be never out of market, you will be never out of business, and you will always be in demand, higher value. You will be happy, your family will be happy, the country will be happy. And with this note, I thank you, and I expect from you that develop a healthy attitude. It will give you a happy attitude, and I'm sure it will bring you a wealthy attitude. Thank you once all of you. And with these few words and with this lot of content, I would like to say goodbye, Khuda Hafiz, and Assalamu alaikum wa rahmatullah.